Okay, hi students. Today I'll tell you about electric flux and Gauss theorem. Last lecture also I told you a little bit about the electric flux, but today first we will discuss about electric flux and what is the Gauss theorem and how Gauss theorem is helpful in finding the electric field in different cases. So Gauss theorem is very much useful to find electric field due to any source of charge that we will look in detail. The first before I tell you about electric flux, you tell me, I'll tell you something about solid angle. So solid angle you try to understand. First you try to understand plane angle. This is a circle and see this is your center. We take a arc, its length is L and this one is theta and the radius is r. So plane angle, this is circle mind you, circle. So plane angle theta is equal to L by r. This is the definition of angle in SI unit. So length of arc, consider this is A, this is B. So length of AB and divided by the radius of the circle. So theta is equal to L by R. This is the definition. Now if somebody will ask you here, so what is total angle by entire circle? So for length what we will place here? The total angle for entire circle is the total angle theta is equal to, formula is L by R. So for total angle you have to find what is the length of this circle, that is circumference. The length of this circle is circumference. So you can write 2 pi r divided by r. So r cancel. This is called 2 pi radian. 2 pi radian is the total angle that you know. And 2 pi radian, and you earlier knowing that the total angle at the center is 360 degree. So 2 pi radian is equal to 360 degree. So naturally pi radian will be 180 degree, pi by 2 radian is equal to 90 degree, pi by 4 radian is equal to 45 degree. So in this way you can go on. So total angle at the center in SI unit is 2 pi radian. Similarly, if you talk a sphere, this is sphere. Don't be confused because similar diagram drawn here and similar diagram drawn here. So this is sphere. This is your center. We take a section of sphere like this, small section, and you join this. You join this. Okay. Join by this point with different lines. So many lines you draw here. The small sectional area is ds and the radius is r. अगर इसको आप कट करके इधर से निकाल लो, ऐसे कट करके, कैसा शेप बनेगा? जस्ट लाइक ए कोन. और ये जो एंगल होगा ये, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा बाय स्मॉल सेक्शन इज इक्वल टू डी एस बाय आर स्क्वायर, द एरिया ऑफ दिस सेक्शन एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल at the center of a regular sphere. I am talking about regular sphere, not irregular one. हम irregular की भी बात करेंगे, पहले regular sphere की बात कर लेते हैं. ds by r square. Now you tell me, अगर हमसे कोई बोले कि भाई पूरे के पूरे सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना है, जैसे यहाँ पे किए थे, तो हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर. What do you mean by S? The S is surface area of this sphere. तो surface area कितना होता है?
This is 4 pi r square divided by r square. So r square cancelled. So total solid angle at the center is how much? Tell me. Total solid angle at the center of a sphere, total solid angle at the center of sphere here is what? So omega you can write down. How much? It's a 4 pi asteradian. 4 pi asteradian. So total solid angle at the center is 4 pi asteradian. अब एक चीज बताओ, ये तो रेगुलर यहाँ सर्कल है, स्फेयर है, अगर इरेगुलर हो तो आंसर क्या होगा? मान लो कि ये सर्कल ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा है, एंड somebody will ask you what is the angle at the center. So is your answer change? No, your answer will still remain same. कितना एंगल होगा? 360 डिग्री. रेडियन में कितना होगा? 2 पाई रेडियन. सिमिलरली अगर ये स्फेयर रेगुलर ना हो करके अगर इरेगुलर हो जाए तो उस केस में सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल आएगा? सेम आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन. ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखना. वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. द सॉलिड एंगल एट द सेंटर इज 4 पाई स्टेरेडियन. So this part that you try to understand. Now you come here. अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो हम आपको बता देंगे. Solid angle. Now we will start with electric flux. That you look here carefully. Electric flux, ये definition हम पहले भी बताए थे. Electric flux is a number of electric field lines, number of electric field lines passes through a surface, perpendicularly. Okay, number of electric field lines passes through a surface perpendicularly is called electric flux. मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं इसको? तो लेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E for electric flux, because another flux you will meet in magnetism, that is magnetic flux. Here electric flux phi E is equal to electric field into delta S. So delta S is termed as, it is the area. Okay. In vector form also you can write down, this is electric flux dot product of electric field vector and area vector. About area vector I told you that area is supposed to be a vector quantity whose direction is towards outward perpendicular. The direction is towards outward perpendicular. Suppose करो ये स्फेयर है, ये हम एरिया लिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? तो इधर की तरफ, आउटवर्ड. इनवर्ड नहीं लेना है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर. नाउ अब एक चीज अब ध्यान देखो कि सपोज करो कि हमारे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, और एक सरफेस ऐसे रखा गया है, ये ध्यान दें. तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is exactly perpendicular to this. This is your delta S. Okay. Direction of area vector is this one. And direction of electric field is this one. You see there,
the direction of electric field is not perpendicular to the surface, because the definition tells you the lines of force passes through the surface perpendicularly. So if you take a component, the component of electric field along area vector will be what? E cos theta. E cos theta is perpendicular to the direction of electric field. So what is flux here? The flux you can write flux phi E is, you can write here E cos theta into del S, because E cos theta is the component of electric field is perpendicular to the surface. That means along the direction of area vector. And that's why sometimes you will write E dot delta S. Okay. Now, if you take small surface, the same formula you see here. If you take small surface, the same formula you look at here. Let sphere we are considering, this is plus Q. The electric field lines are going through this way. All electric field lines are perpendicular to the surface, no problem. We take a section here, small section. In a small section, first we will take what is the direction of area vector. Same, this is the direction of area vector. What is the direction of electric field? Same as the direction of area vector here. Okay. Now what is the electric flux through this section? Electric flux through this section is how much? Small electric flux means d phi E is equal to E into ds. D phi E is E into E is electric field and dot ds. Now magnitude you can write down E into ds into cos 0 degree, because the angle between area vector and electric field is same, so angle is 0. Now you generalize this. What is total electric flux passing through the entire sphere? The entire sphere is what? The total electric flux passing through entire sphere is how much? We have to integrate. D phi E is being integrated. Where that? E into ds. You can integrate. This is a closed integral because of closed surface. So phi E is equal to E into S. What do you mean by S? S is surface area, total surface area. What is that? It is E into 4 pi r square. Any problem? So this is total electric flux passing through a regular sphere where a charge plus Q is placed at the center. No problem here. Now total electric flux calculated. Now you look at the total electric flux phi E is what? Total electric flux phi E is E into 4 pi r square. No problem here. Now you see carefully what is E. The magnitude of electric field at a distance r is the radius of the sphere, is equal to पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, कितना आता है
पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, E इज इक्वल टू ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q divided by R square. Okay, so you put here E को रिप्लेस करो 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. This is for electric field due to point charge at a distance R into 4 pi R square. So everything is cancelled except आपको ऊपर में Q और नीचे में epsilon naught. It's okay? Q epsilon naught. So electric flux phi E is equal to Q divided by epsilon naught. This is called Gauss theorem. This is called Gauss theorem. Okay. The Gauss theorem statement you can write down: the total electric flux passing through a sphere, normally we call it Gaussian sphere. Gaussian sphere का मतलब या Gaussian surface का मतलब हुआ कि उससे सारे के सारे लाइन्स ऑफ फोर्स निकल जाए। इस तरह से आपको सरफेस रखने हैं कि सारे के सारे लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट होके निकल जाए। तो what is the statement? The total electric flux due to Gaussian sphere, total electric flux due to Gaussian sphere is 1 by epsilon naught times the net charge. ये ध्यान में रखना, चार्ज नहीं बोलो, नेट चार्ज enclosed by the surface. Okay, so this is the statement of Gauss theorem. Total electric flux passing through a Gaussian sphere is, या Gaussian surface भी आप बोल सकते हो। Gaussian surface का मतलब हुआ, ये वर्ड याद रखना, the surface which encloses the charge such that the all electric field lines passing through the surface. तो total electric flux passing through a Gaussian surface, passing through a Gaussian sphere is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकली आप लिख सकते हो phi E is equal to Q by epsilon naught. अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, पूछता भी है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है कि मान लो कि इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इफ यू रिप्लेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स घट जाता, 1 by k हो जाता तुम्हारा, यानी k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज फॉर इफ यू आर यूजिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम आल्सो। ये तो एक पार्ट हुआ। तो एक क्वेश्चन क्या बना कि इफ यू प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज देयर एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने जवाब देना यस इट विल चेंज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल डिक्रीज एंड डिक्रीज बाय 1 by k टाइम्स, करेक्ट। सो ये ध्यान में रखना, दिस इज वन पार्ट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मान लो एक डाइपोल हमने रख लिया, दिस इज -q एंड दिस इज +q। आपसे पूछेगा व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो आपने बोलना 0। क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q by epsilon naught, Q नेट कर लो, Q नेट। तो नेट चार्ज क्या है? 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0। इसको दूसरे तरह से आप समझो कि +q चार्ज के कारण लाइंस जो है बाहर निकलेगा, -q चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स जो है अंदर आएगा, तो जितना बाहर जाएगा उतना अंदर आएगा, तो नेट रिजल्ट इज 0। ओके। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो आपसे पूछे कि आपके पास 2 स्फीयर है, S1, दूसरा स्फीयर है S2, ओके।
S1 है, S2 है। S1 के अंदर है +3 कूलम चार्ज, यहाँ पे है -2 कूलम चार्ज। तो φ1 और φ2 का रेशियो बताओ। तो φ1 बराबर हो जाएगा 3/ε0 और φ2 बराबर हो जाएगा, ये जो दूसरा स्फीयर है उसके अंदर में ये भी है, ये भी है, तो +3 कूलम -2 कूलम, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/ε0। तो अगर आप रेशियो करेंगे दोनों के फ्लक्स का, दोनों स्फीयर के फ्लक्स का, तो आपका रेशियो कितना आएगा? 3:1। Okay, so you have to see here. There are so many problems that you see in the book and try to solve those problems. Now, अब इसका हम एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का क्या करते हैं? तो गॉस थ्योरम को एकदम रट जाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको गॉस थ्योरम समझना बहुत आसान है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface, through a Gaussian surface, you can say. Gaussian surface means any enclosed surface which encloses such that the all electric field lines are passing through the surface. कोई भी फील्ड लाइन हवा से नहीं गुजरना है, उस सरफेस से होके इंटरसेक्ट करते हुए निकलना है। कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही निकले। एनी सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज गॉसियन सरफेस। नाउ बट ये ध्यान रखना कि वो जो सरफेस होना चाहिए वह इनक्लोज्ड होना चाहिए। अब जैसे आपके एक टेक्स्ट बुक में एक सवाल देखना कि मान लो एक क्यूबाइड टाइप का सरफेस है, ये क्यूबाइड है, अब यू सी इन द बुक, और इसके सेंटर पे जो है वह एक चार्ज रख दिया है Q। तो आप हमको ये बताओ कि टोटल फ्लक्स निकलेगा कितना? तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? तो गॉस थ्योरम यूज करो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस ऑल्सो इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, और ये जो फील्ड लाइंस है आपके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें क्या है कि कुछ लाइन जो है वह इस वॉल से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। हाउ मेनी वॉल्स आर देयर इन Q? देयर आर 6 वॉल्स, और सिमेट्रिकली इक्वल फ्लक्स जो है थ्रू ईच वॉल जाएगा। तो क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द वॉल, वन ऑफ द वॉल। तो वन ऑफ द वॉल में क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द वॉल इज 1/6 ऑफ Q/ε0। दिस विल बी द आंसर। और ये चार्ज सेंटर पे रहे, कहीं भी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं ध्यान देना कि वो उधर है इधर है, लाइक दैट यू डोंट थिंक। सो ये सवाल है, आप इसको देखें गौर से। एक और सवाल पूछता है कि मान लो ये आपके +Q चार्ज है, और जो गॉसियन स्फीयर है उसका रेडियस है R। इस रेडियस को आपने डबल कर दिया, दिस रेडियस R' इज इक्वल टू 2R। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि ये दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होगा? यू आर फॉलोइंग? There is given +Q charge. It is enclosed by a Gaussian sphere of radius R. The same charge is enclosed by another Gaussian sphere of double radius. So what will be the electric flux? Electric flux में क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने बताना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What is the reason behind this? The reason is simple कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चाहे सरफेस बड़ा हो छोटा हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये छोटा सरफेस भी +Q चार्ज इनक्लोज कर रहा है, और बड़ा सरफेस भी उसी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। सो इसका भी फ्लक्स होगा Q/ε0, और इसका भी फ्लक्स, बड़े का भी फ्लक्स होगा Q/ε0। आपके मन में ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है, दैट आई एम टेलिंग यू, इट मे कम समटाइम्स, कि कहोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला हमने बताया, क्या? φE बराबर कितना? E इंटू ΔF। करेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसे भी निकालते हैं। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। नाउ यू लुक एट हियर। तो आप देखोगे सर बड़े का तो एरिया ज्यादा है, तो बड़े का एरिया ज्यादा है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कम होगा क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा है। और आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, और एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का इन दिस केस। बात समझ में आया? तो जब अगर एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको उसी रेशियो में घट गया ना। तो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस part that you try to understand carefully. There are so many questions are there, but today I'll tell you one more thing there. Now what is the use application of Gauss theorem? The application of Gauss theorem आपको सिलेबस में 3 पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, और तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। So 3 electric field by using Gauss theorem you have to read in your syllabus. There are so many method to find electric field, but Gauss theorem को अप्लाई करके हमको 3, हाँ एक और पढ़ना है उसमें, what is electric field due to charged cell। सेल मतलब होता है खोखला गोला। तो एक खोखला गोला है, उसके सरफेस पे चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दैट मीन्स 4 आपको इसका एप्लीकेशन बढ़िया से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो खूब अच्छे से तैयारी करना है इसको। अब कैसे करते हैं, पहला हम छोटा सा एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आसान है, अभी हम किए भी थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप कूलम्स लॉ से भी निकाल चुके हो। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बट गॉस थ्योरम को यूज करके हम कैसे निकालते हैं वो आप देखें। तो लेट कंसीडर दिस इज योर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लाइंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, कितना वैल्यू आएगा। ये तो हमारा असाइनमेंट है, याद रखें हम गॉस थ्योरम की मदद लेंगे थोड़ा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर। दिस इज व्हाट, गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमने r रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया। ये अभी जस्ट प्रूफ किया, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो। We take a small section here of sectional area ds, and the direction of area vector is this, outward perpendicular. Okay? What is the direction of electric field here? The same area vector और electric field का direction same होगा। What is electric flux through this section? The electric flux through this section is, can anybody tell me? Electric flux through this section d phi is equal to E into ds into cos 0 degree, because the angle between them is 0. ये बराबर हो जाएगा E into ds. Okay? ये हुआ electric flux through this small section. Now you have to find electric flux due to entire Gaussian sphere. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इंटायर गॉसियन स्फीयर, यू हैव टू इंटीग्रेट। तो डी फाई को आप इंटीग्रेट करो, कुछ नहीं है तो साधारण सा है, ई इंटू डी एस। तो क्या हो जाएगा, फाई डी फाई का फाई ई इंटू एस। एस मीन्स व्हाट, इज द इंटायर सरफेस एरिया। so this is what E into 4 pi r square. ये हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर. ओके, अब आप देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल लिया. अब गॉस थ्योरम क्या बोलते हैं? तो फ्रॉम गॉस थ्योरम
व्हाट इज देयर? तो गॉस थ्योरम के हिसाब से ये हुआ, कैलकुलेट करके हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गॉस थ्योरम, what is total electric flux? So phi is equal to Q by epsilon naught, total charge enclosed divided by epsilon naught. Okay, so phi is equal to Q by epsilon naught. No problem here. Now what you will do? अब चलो आगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीका से निकाला। This one method was from Gauss theorem and other method was from calculation. अब दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट कर दें, तो इक्वेट करके देखो, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इट्स ओके। E इंटू 4 पाई, तो E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू, नाउ यू सी हियर, वही फॉर्मूला आएगा, उधर ले जाओ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम। ये अभी जस्ट हम किए हैं, दोबारा कर दिए हैं। अब प्रैक्टिस जरूर करना है इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। दिस इज वन पार्ट। अब चलो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, इस बात को ध्यान से देखना। If in examination question asked by using Gauss theorem you prove Coulomb's law, okay? तो using Gauss theorem proves Coulomb's law में कैसे प्रूव करेंगे? अब आप हमको ये बताओ कि आपने यही काम करना, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे Q1 चार्ज रख लेना, ओके? अब सेव का आप करना, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। यू प्लेस हियर Q1 चार्ज, तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड? सेम प्रोसेस आप लाना। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला कैलकुलेशन मेथड से, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गॉस थ्योरम से, फिर दोनों को इक्वेट कर देना। E का फॉर्मूला आएगा। E का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q की जगह हमने क्या रख दिया था? Q1 बाई आर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा क्या करना कि एट पॉइंट P another charge Q2 is placed। अब उस पॉइंट पर हमने Q2 चार्ज रख दिया, तो व्हाट इज फोर्स ऑन Q2? तो फोर्स ऑन Q2 क्या होगा बताओ? तो फोर्स ऑन Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q2 इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दैट? तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, विच इज योर कूलम्स लॉ। ओके, तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बाय यूज ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव कूलम्स लॉ, तो यू कैन प्रूव इजीली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास।